Am I audible? Can you speak from your side? Can you speak from your side? Anyone? Can you speak from your side? Yes, sir. Hello, hello, hello. Yes, sir. Can you speak from your side? Audible, I know. Can anyone speak? Yes, sir. Can anyone speak? Hello, hello, hello. Sir. Yes, sir. Hello, Yes, sir. hello, 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 hello. Audible. I know audio. Yes, sir. I audible. But can you speak from your side? You are audible to me or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फोर्स निकालेंगे तो कंसीडर कर रहे हैं हम इसके लिए एक क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं दैट इज बेसिकली ये वाला क्वेश्चन है कंसीडर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m कंसीडर द मोशन of a particle of a particle of mass m
mass m moving in a plane, moving in a plane, moving in a plane. Okay, using the polar coordinate r comma theta, using the polar coordinate r comma theta, using the polar coordinate r comma theta. Okay, as generalized coordinate, gc means generalized coordinate. Deduce the expression for the component of generalized force. Deduce the expression for generalized force. Generalized force के लिए आपने एक्सप्रेशन लिखना है. जनरलाइज्ड फोर्स के लिए ये क्वेश्चन है आपका. लेट अस सपोज दिस इज द क्वेश्चन, और जनरलाइज्ड फोर्स के लिए आपने एक्सप्रेशन लिखना है. ओके, तो इसको एक्सप्रेशन आपने जनरलाइज्ड फोर्स के लिए नोट करना है. व्हाट इज द जनरलाइज्ड फोर्स, व्हाट आर द रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, ये भी पूछा हुआ है यहाँ पर. व्हाट आर द रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, व्हाट आर द रेडियल and tangential component of force, ये क्वेश्चन है ऑफ फोर्स. ओके, इसको आपने कैलकुलेट कर डिटरमाइन करना है. तो एनी मैसेज, नो मैसेज. ओके, तो यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स. जब तक आपको जनरलाइज्ड फोर्स का फॉर्मूला याद नहीं है तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. ओके, तो जनरलाइज्ड फोर्स का फॉर्मूला याद होना जरूरी है ना. जनरलाइज्ड फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ही जरूरी है. जब तक आपको जनरलाइज्ड फोर्स का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, इसमें जनरलाइज्ड फोर्स के बारे में बात की गई है. तो जनरलाइज्ड फोर्स के बारे में बात की गई. सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है, कंसीडर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन ए प्लेन. तो सबसे पहले हम प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं. बेसिकली प्लेन हमारा काम में आएगा. दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई. इस प्लेन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है. दिस इज द मास एम पार्टिकल हेयर मूविंग इन अ प्लेन. So there is no restrictions in xy plane, means it is moving on a circle, is moving on in any type of curve, है ना. There is no curve on which this is moving inside the plane. It is free to move anywhere inside the plane. So first of all, the coordinate of this system, suppose in Cartesian coordinate this is x comma y, इसके Cartesian coordinate में हो जाएंगे. And you are going to connect from here to here with the help of this line. So this is basically what? This is basically a r, है ना, और this is basically a theta. As I told you, in plane में 2 dimension plane में एक x होगा, एक r होगा, एक theta होगा. So the relation between, जब प्लेन में ये मूव करेगा तो draw the perpendicular from here, draw the perpendicular from here. So this is basically a 90 degree. Here is the 90 degree. So this value is basically y, or this value is basically x. So what is x? X is basically base for this triangle theta, and y is perpendicular for this triangle theta, है ना. This is a 90 degree triangle. So y is the perpendicular. Perpendicular can be written as the this is the hypotenuse times sin theta, and base is can be written as the hypotenuse sin cos theta. This is all of you know. So these two are the relation. So by these two relation, you can say x square plus y square. What is x square plus y square? No, it's not sure. What is x square plus y square? So here you cannot say. So what is x square plus y square? Okay, x और y को आप नहीं बोल सकते, क्या x है क्या y है ये आप नहीं बोल सकते, है ना. अगर इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे
तब आपको क्या मिलेगा, अगर आप इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो तब आपको क्या मिलेगा, आर मिल जाएगा बेसिकली, है ना, आर स्क्वायर हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा तो ये मिल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो एक ये रिलेशन आ गई, बट यहाँ पर आप बोल सकते हो आर फिक्स नहीं है ना, एक्स और वाई अब इंडिपेंडेंट नहीं रहे, है ना, एक्स और वाई कैसे है, नॉट मोर इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट, है ना, ये इंडिपेंडेंट तो है नहीं, एक्स और वाई तो इंडिपेंडेंट नहीं है। और सॉरी, ये आपको दिख नहीं रहा होगा इंडिपेंडेंट, तो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट नहीं है ना, एक्स और वाई कैसे है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर एक्स चेंज होगा तो वाई भी चेंज होगा, और वाई चेंज होगा तो एक्स भी चेंज होगा, तो एक्स और वाई इन दोनों चीजों से रिलेटेड हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, अगर आर फिक्स हो जाता है, बट आर इज नॉट फिक्स, अगेन पार्टिकल पता नहीं किस तरह के कर्व पे मूव कर रहा है ना, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इज जस्ट नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर इज डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई साइमल्टेनियसली, and if you are going to determine the theta, theta is basically sin theta, if you divide the both sin theta upon cos theta, then you will get the, then you r sin theta upon r cos theta, then you will get the y upon x, so this is cancel, tan theta is just nothing but y upon x, theta is also tan inverse of y upon x, or theta also depend y or x, r is also depend y and x, है ना, but theta and r both are not depend to each other, because these two are not going to relate with each other, r is changed independently according to x and y, theta is changed independently according to x and y. If somebody says to you कि r is fixed, मतलब this particle is moving on the circle, then r is not variable, that's why r is not a generalized coordinate, but here यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ, here the generalized coordinates are two, r and theta both are generalized coordinates, r and theta both are generalized coordinates for this system, okay, तो r and theta आपने generalized coordinate लिखी है, generalized coordinate इसके लिए क्या क्या है, r and theta, are you understand? यहाँ पर आपको नहीं बोला हुआ कि मैसेज आ रहा है कोई, ओके, कंचन इज एडमिट, ओके, सर कंचन go, okay, now कंचन connected, now कंचन connected, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ये वाली एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, कंसीडर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए प्लेन, यू है ना, प्लेन में मूव कर रहा है, बट प्लेन का कोई कर्व नहीं है, कर्व आपको नहीं बताया है, जिस कर्व पे पार्टिकल मूव कर रहा है, कंचन इज कनेक्टेड, नाउ कंचन इज देयर, कंचन इज विजिबल हेयर, आई थिंक शी इज कनेक्टेड, तो अगर हम इसमें देखें tan थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी है, तो अब हमने क्या करना है कि ये दो हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गए, आर एंड थीटा जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गए, तो अभी हमने क्या करना है, अब हमने देखना है इसका, एक मैंने आपको इक्वेशन बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जनरल इक्वेशन ऑफ लॉन्ग्रेंजियन, जनरल इक्वेशन ऑफ लॉन्ग्रेंजियन मैंने आपको बताई थी, कौन सी होती है, डी ओवर डी टी करली एल ओवर, करली एल नहीं आता उसमें, करली टी ओवर करली क्यू के डॉट माइनस करली टी ओवर करली क्यू के इज इक्वल टू जी, जी के क्या है यहाँ पर, जी के है हमारा जनरलाइज्ड फोर्स, जी के जनरलाइज्ड फोर्स है ये वाली चीज, ये जनरलाइज्ड फोर्स है, तो ये चीज हमने निकालनी है, जनरलाइज्ड फोर्स है क्या, ये चीज हमने डिटरमाइन करनी है, जनरलाइज्ड फोर्स है क्या चीज, ये हमने डिटरमाइन करनी है, जनरलाइज्ड फोर्स डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मैंने आपको डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल में जनरलाइज्ड फोर्स का फॉर्मूला आपको याद है,
जनरलाइज्ड फोर्स का फॉर्मूला है क्या? मालूम है आपको जनरलाइज्ड फोर्स का फॉर्मूला? जनरलाइज्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या है, याद है कुछ? तो जनरलाइज्ड फोर्स का फॉर्मूला अगर हमने लिखे हैं तो कैसे लिख सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल में, एक बताया था आपको। डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल में समेशन आई, है ना, एफ आई माइनस पी आई, है ना, दिस इज द अप्लाइड, और डेल्टा आर आई, दिस इज द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ये हमेशा रहता है किसी भी सिस्टम पर, है ना, ये हमेशा किसी भी सिस्टम पर इस तरह से रहता है। तो ये हमने, ये क्या है यहाँ पर, डेल्टा आर आई क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। डेल्टा आर आई क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। और एफ आई क्या है, अप्लाइड फोर्स ऑन द सिस्टम, है ना, सिस्टम पर कितना अप्लाइड फोर्स रहा है। आइथ पार्टिकल, ये पार्टिकल को डिनोट कर रहा है, आइथ पार्टिकल को, पी आई। तो इसमें अगर हम ये सारी चीज़ें हम जब सॉल्व कर रहे थे, उसके बाद हमें एक इक्वेशन मिली थी जिसमें हमने लिखा था बाद में, तो ये इसको हमने एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि जब हम सिस्टम को सॉल्व कर रहे थे तो एफ आई अप्लाइड आया था यहाँ पर ना, एफ आई अप्लाइड उसमें कहीं भी नहीं आ रहा था बॉडी में, तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया था इस तरह, इस चीज़ को एलिमिनेट कर दिया था। तो डेल्टा आर आई की वैल्यू क्या थी, डेल्टा आर आई की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, वो भी याद होनी चाहिए आपको, है ना। तो डेल्टा आर आई की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, वो कितनी थी डेल्टा आर आई की वैल्यू। तो अगर हम इसको, यहाँ पी आई डॉट आता है ना, तो ये वाली इक्वेशन भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद जब आगे आप देखोगे तो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी जो इसमें जनरलाइज्ड फोर्स का फॉर्मूला था, है ना, जी के। जी के का जो वैल्यू बताई थी मैंने, क्या बताई थी, जी के इज इक्वल टू एफ फोर्स टाइम्स और एफ आई, अगर आप ऐसे लिखो एफ आई और डेल्टा करली आर आई ओवर करली आर आई ओवर करली क्या था, क्यू के, जो आपका जनरलाइज्ड पॉइंट। ये मैंने आपको बताया था, जीके का फॉर्मूला ये होता है। जनरलाइज्ड फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, एफ आई करली आर आई होगा। तो यहाँ पर समेशन भी लगा सकते हो आप, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, सारे पार्टिकल्स के लिए आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो ये सर याद होना चाहिए। तो ये सॉरी नीचे हो गया, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर लिख रहा हूँ, सॉरी, ये आपको दिखा नहीं होगा। जीके का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जीके इज जस्ट नथिंग बट समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ आई, आप पीछे जाके देखो, करली आर आई ओवर करली क्यू के। इज इट क्लियर? ये जीके का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था और बोला भी था कि इसको याद कर लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जीके इज द जनरलाइज्ड फोर्स समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, all the particles, fi means ith particle का force, ri ith particle की position, और qk तो आपको मालूम ही है, qk is the जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो अब यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो ये तो नहीं चाहिए आपको डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल वाला, ये मैं आपको ड्राइव कराया था वहाँ पर, वो आप देखोगे। तो ये वाला फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जी के इज इक्वल टू आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ आई करली आर आई ओवर करली, ये आपको माला पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये वाली इक्वेशन आपको यूज करनी है यहाँ पर जनरलाइज्ड फोर्स निकालने के लिए, ये वाली। अब देखो कितने जनरलाइज्ड फोर्स होंगे, जितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे उतने जनरलाइज्ड फोर्स होंगे। कितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, 2, 2 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, 2 आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, और 2 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 फोर्स होंगे। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने, 2 है, 2 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो इसको इक्वेशन को आप 2 टाइम लिखोगे, 2 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट 2 फोर्स, 2 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट 2 जनरलाइज्ड फोर्स, ये सेम ही रहेगा। या 2 लॉन्ग रेंज इक्वेशन भी बोल सकते थे आगे, अगर आप उसमें लॉन्ग रेंज इक्वेशन पूछा नहीं है तो इसमें आपके 2 जनरलाइज्ड फोर्स होंगे। एक जनरलाइज्ड फोर्स कौन सा होगा, के की वैल्यू कौन कौन सी है, के इज हमारा क्यू के का है हमारा 2 वैल्यू है क्यू के की, एक Q1 दैट इज R, एक Q2 दैट इज थीटा। एक Q1 दैट इज R
और एक Q2 दैट इज थीटा। तो दो हमारे ये हैं, ठीक है। तो आपको पूछा है कंसीडर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए प्लेन यूजिंग द पोलर कोऑर्डिनेट r theta as generalized coordinate, reduce the expression for the generalized force। तो जनरलाइज फोर्स के लिए हमने एक्सप्रेशन निकालना है, तो ये वाली इक्वेशन होगी यूज जनरलाइज फोर्स वाले में। लॉगरिथमिक इक्वेशन यूज नहीं करनी आपने, ये वाली इक्वेशन आपने यूज करनी है। तो मैं ऊपर से अब इसको मिटा रहा हूँ क्वेश्चन को, और बाकी हम सॉल्व करेंगे ऊपर। तो पहले आपको एक्सप्रेशन निकालना है जनरलाइज्ड फोर्स का। तो पहला एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे आप, ये फॉर्मूला है आपका। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सिस्टम के पास, पहले आपको काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, T इक्वल टू क्या होता है 1/2 मास टाइम्स x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर, ये आपको मालूम है x डॉट स्क्वायर। केवल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, इसमें पोटेंशियल नहीं लिखना है। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला में आ रही है, केवल काइनेटिक एनर्जी आपने लिखनी है, पोटेंशियल नहीं लिखना है। तो x डॉट अगर करें, अगर आप x डॉट करोगे इसका तो क्या मिलेगा, अगर आप इसका x डॉट करते हो तो ये मिटा देते हैं, इनकी यूज नहीं है कोई भी। तो x डॉट अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा, x डॉट यहाँ से देखो, दिस इज x, इसका अगर मैं x डॉट करता हूँ तो क्या मिलेगा, x डॉट अगर मैं करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, r वेरिएबल थीटा वेरिएबल, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड साइन थीटा थीटा डॉट प्लस r डॉट कॉस थीटा, ओके ऐसे मिल जाएगा। और y डॉट अगर करें इसका, y डॉट क्या मिलेगा, r साइन थीटा का कॉस थीटा थीटा डॉट प्लस r डॉट साइन थीटा। तो ये हमारा y डॉट मिल गया। तो दोनों मेरे पास हैं, अब इनका स्क्वायरिंग करके ऐड करना है। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो ये कई बार कर चुके हो आप, x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर अगर कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों टर्म का स्क्वायर ऐड करो तो क्या मिलेगा, r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। इन दोनों टर्म का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, r डॉट स्क्वायर। बट जब इनके ट्वाइस वाला जो फैक्टर है, 2 टाइम्स वाला, 2ab वाला इसका 2ab वाला इसका, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस टर्म आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/2 मास टाइम्स r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये कई बार आप कर चुके, थीटा डॉट स्क्वायर, ये मिल गया। काइनेटिक एनर्जी आपको ये वाली मिल गई। जब एक बार आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है तो फिर आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में लगा दोगे। तो पहले आप Q1 पुट कर दो, इसमें Q1 वाली इक्वेशन पुट कर दो। तो यू हैव 2 इक्वेशन है ना, वन इज द Q1 दैट इज r, Q1 क्या है हमारा r है, पहला जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट r है। तो अब मैं इसको r के रेस्पेक्ट में लिख देता हूँ d ओवर dt करली t ओवर करली Q1 डॉट का मतलब क्या आ जाएगा, r डॉट इज इट क्लियर, माइनस करली t ओवर करली r दैट इज g, k की जगह r, k को मैंने r लिया है ना, तो k की जगह क्या आएगा r, gr, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे आप d ओवर dt, इसका इस चीज को ये जो हमारा है काइनेटिक एनर्जी को हमने r डॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करना है। तो ये वाले टर्म का कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, इसमें है नहीं r डॉट, 0 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा m r डॉट, ये इसका आएगा काइनेटिक एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू r डॉट। तो यू विल गेट m r डॉट, ओके, एंड माइनस काइनेटिक एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू r। तो विद रेस्पेक्ट टू r फर्स्ट टर्म में देयर इज नो r मींस 0, सेकंड टर्म में r स्क्वायर थीटा डॉट, मतलब यहाँ से आपका 2r आएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस तो आएगा ही आपका, है ना, इसमें तो प्लस का ही आएगा। तो ये लिख सकते हैं हम, पहले टर्म का 0 हो गया, दूसरे टर्म का मिलेगा हमें मास टाइम्स r थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऑफ r, ये आपका हो गया इज इक्वल टू जी ऑफ r। तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपका सॉल्यूशन कितना मिला,
इसको अगर अब कर दो इसका टाइम के रेस्पेक्ट में फिर से, तो ये बन जाएगा मास टाइम्स आर डबल डॉट, मास टाइम्स आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऑफ आर। ये आपका क्या बन गया, रेडियल फोर्स बन गया है ना, जो रेडियल फोर्स है वो आपका मिल गया। तो जी ऑफ आर की वैल्यू कितनी मिल गई, एम आर डबल डॉट एम आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो एक आपका ये फोर्स मिल गया, ठीक है। ये जनलाइट फोर्स मिला है आपको, क्या मिला है देखो, जनलाइट फोर्स मिला है। अभी ये कौन सा है, जनलाइट फोर्स, दिस इज रेडियल जनलाइट फोर्स। इसको जनलाइट फोर्स मिलोगे बोलोगे। बाद में आपसे पूछा है व्हाट आर द रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ये बाद में आपने निकालने हैं, बट अभी क्या मिला आपको, रेडियल जनलाइट फोर्स मिला। ये जनलाइट फोर्स है, जनलाइट फोर्स, ये रेडियल कंपोनेंट नहीं है, ये है जनलाइट फोर्स, है ना। ये जी आर इज द जनलाइट फोर्स। दूसरा जनलाइट फोर्स कौन सा मिलेगा, दूसरा जनलाइट फोर्स मिलेगा अगर इस वाली इक्वेशन को ही, Q2 कौन सा है, Q2 है हमारा थीटा, Q2 क्या है हमारा थीटा। अब नाउ Q2 में ले लेता हूँ थीटा। अब आप इस इक्वेशन को ही किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में, दिस इज थीटा डॉट, यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा, और जीके की जगह क्या आ जाएगा, जी थीटा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जी थीटा। जब थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग आएगा, है ना, यहाँ पर आपका थोड़ा सा अलग आएगा। तो जब आप इसको थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो डी ओवर डी टी करली टी ओवर करली थीटा डॉट, करली टी ओवर करली थीटा डॉट की वैल्यू क्या आएगी बताओ, मास टाइम्स, मास तो आ जाएगा, थीटा डॉट यहाँ से डिफरेंशिएशन होने वाला है, ये वाला डिफरेंशिएशन होने वाला है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा मास टाइम्स, पहले वाले का तो जीरो हो गया, थीटा है नहीं, दूसरे वाले का आएगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस फिर करली टी ओवर करली थीटा, करली टी ओवर करली थीटा इस पूरे टर्म में नहीं है, थीटा कहीं नहीं है, थीटा इंडिपेंडेंट है, तो दैट इज जीरो, और जी थीटा, तो जी थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो इधर, हो सकता है आपको एक वो वाला ऊपर वाला दिख नहीं रहा हो, तो दो इक्वेशन आई, मैं इसको फिर से पहले वाली इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऑफ आर। एक तो ये इक्वेशन आ गई हमारी, एक आपकी ये इक्वेशन आई, जो पहले वाली इक्वेशन से जब आपने आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तब ये वाली इक्वेशन आई। अब आपकी ये इक्वेशन आ गई है यहाँ से, इसको कैसे लिखोगे आप, इसका टी के रेस्पेक्ट में करना है, इसको किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी के रेस्पेक्ट में। कितने वेरिएबल है यहाँ पर, दोनों वेरिएबल हो जाएंगे, एक वेरिएबल नहीं है, दोनों ही आपके वेरिएबल है। तो टी के रेस्पेक्ट में जब आप इसको करोगे तो यहाँ पर आपके दो वेरिएबल है ना, तो अब एक वेरिएबल था नहीं, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, डी ओवर डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, थीटा डॉट ओनली, है ना, डबल वेरिएबल है, और ये आ गया हमारा जी थीटा, ये दोनों लिख लिया हमने, दिस टू आर दिस टू। तो ये हमारा आंसर हो गया जनलाइट फोर्स, ये हमने निकाल लिए जनलाइट एक्सप्रेशन फॉर जनलाइट फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर जनलाइट फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर जनलाइट फोर्स, जनलाइट फोर्स, ठीक है। तो जनलाइट फोर्स के एक्सप्रेशन दो निकाले हमने। अभी आपको पूछा व्हाट आर द रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये आपका प्रॉब्लम नेक्स्ट है। तो पहले हमने दो जनलाइट फोर्स निकाल लिए, अब रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट पूछे हैं, क्या पूछा है, रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होंगे, ये चीज आपको पूछी गई है। तो रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालने के लिए आपने क्या किया, मैं यहाँ पे ड्रॉ निकाल रहा हूँ, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप करेंगे, अब रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट हमने निकालने हैं, रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट हमने निकालने हैं, ठीक है। तो रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे,
तो रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट, अब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला, जीके इज इक्वल टू आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ आई करली आर आई और करली क्यू के डॉट, ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे तो फिर किस तरह से निकालोगे आप इसको, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जी आर की वैल्यू क्या आएगी हमारी, अब देखो जी के यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जी के इज इक्वल टू आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ आई कर लिया आर आई ओवर कर ली क्यू के, है ना। तो आपके लिए पार्टिकल तो एक ही है, पार्टिकल कितना एक ही है, तो ये आपका खत्म हो जाएगा, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ये खत्म हो जाएगा, ये समेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल कितने हमारे पास, एक ही पार्टिकल है। कितने पार्टिकल है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, summation I running from 1 to n meaning is that you have all 1 to n particles, so sum of all particles force है ना, fi कर लिया है, बट आपके पास पार्टिकल एक ही है, तो आपका फॉर्मूला सिंपल सा क्या रहेगा, जी के, है ना, दो है हमारे पास, f सीधा सीधा रहेगा, करली आर सीधा सीधा रहेगा, करली आर भी चेंज नहीं होगा, आर आई नहीं लिख सकते आप, है ना, आर आई पार्टिकल एक ही है, जब आर आई कब लिखोगे, जब बहुत सारे पार्टिकल है, तो करली आर ओवर करली क्यू के, करली क्यू के, इज इट क्लियर, क्यू के रहेगा। तो पहला कौन सा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, क्यू, पहला जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, आर, तो जी आर आएगा, जी आर इज इक्वल टू एफ डॉट, ये वेक्टर होता है यहाँ पर, है ना, और ये भी वेक्टर होता है, दोनों वेक्टर है, ये याद रखना आपने, ये वेक्टर होता है और ये भी वेक्टर, पोजीशन इज द वेक्टर और फोर्स इज द वेक्टर, वेक्टर माइनस करली आर ओवर आर, इज इट क्लियर, करली आर ओवर आर हो जाएगा, करली आर ओवर आर हो जाएगा, ये क्लियर हुआ आपको, करली आर ओवर आर हो जाएगा। अब दूसरा कौन सा होगा, एंड जी के की जगह क्या आएगा, थीटा, वेक्टर एफ करली आर ओवर करली थीटा, करली आर ओवर करली थीटा, एक होगा आपका करली आर ओवर करली थीटा और एक होगा आपका करली आर ओवर करली आर। तो बस अब क्या करना है आपने, केवल ये यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, रेडियल एंड वो वाले कंपोनेंट मिल जाएंगे, रेडियल कंपोनेंट और कौन से कंपोनेंट मिल जाएंगे, रेडियल कंपोनेंट मिल जाएंगे, और कौन से कंपोनेंट मिल जाएंगे आपको। अब एफ की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, है ना, तो एफ की वैल्यू और थीटा की वैल्यू अगर आप लगा दोगे, आपको मालूम है जी ऑफ आर कितना निकाला है आपने, जी ऑफ आर आपने निकाला है, वो है जी ऑफ आर, यहाँ पे जी ऑफ आर लगा दो, जी ऑफ आर की वैल्यू आपने निकाली है एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ डॉट करली आर ओवर करली आर को क्या लिख सकते हो आप, करली आर वेक्टर ओवर करली आर, तो क्या लिख सकते हो, ये आप बताना पड़ेगा आपको। तो मैं पहले ये वाला निकालता हूँ, है ना, तो आर वेक्टर क्या होता है, आप सभी जानते हो आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, सबको मालूम है ना, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज आर वेक्टर, आर वेक्टर इज बेसिकली होता है हमारा, आर वेक्टर कितना होगा इस इक्वेशन के लिए, अगर आर वेक्टर आप लिखो तो वेक्टर आर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेक्टर आर की वैल्यू क्या होगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इज इट क्लियर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये इसके लिए वेक्टर आर हो जाएगा। अगर आप आर की वैल्यू लगाओ, एक्स की वैल्यू लगाओ तो आर कॉस थीटा, ये रही एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा और जे कैप, ठीक है। अब आपने करना है करली आर ओवर करली आर, वेक्टर आर, करली आर ओवर करली आर, इस वेक्टर आर को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका क्या हो गया 1 cos थीटा बचा है आई कैप, और इसका भी हो गया 1, ये साइन थीटा बचा और जे कैप। और ये एक चीज मैंने आपको पहले बता चुका हूं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं,
इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, आर कैप, आर कैप बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप को क्या बोलेंगे हम, आर कैप बोलेंगे, है ना। आर यू अंडरस्टैंड, आर कैप बोल सकते हैं इसको, इसको आर कैप बोल सकते हैं, क्योंकि आर कैप क्या हो जाएगा, आर कैप जस्ट नथिंग बट वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस वेक्टर आर, मतलब वेक्टर आर का मॉडुलस वेक्टर आर से डिवाइड कर दो। अगर वेक्टर आर को मॉडुलस वेक्टर आर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप डिवाइडेड बाई मॉडुलस वेक्टर आर का मतलब आर से डिवाइड कर रहे हो, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो यही चीज मिलेगी, यही चीज मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं आर कैप। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि जो हमारा करली आर ओवर करली आर है, करली आर वेक्टर ओवर आर है, ये कितना आ गया, आर कैप आ गया। यहां पर पुट कर दो इसको, तो ये एफ ओके डॉट आर कैप आ गया, एफ डॉट आर कैप, एफ डॉट आर कैप, वेक्टर एफ डॉट आर कैप क्या होता है, एफ के कितने कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट होंगे, एक रेडियल एक एंगुलर, है ना, 2 कंपोनेंट होंगे, एक रेडियल और एक एंगुलर। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई, अगर इसके 2 कंपोनेंट लिखूं एफ ऑफ आर और आर कैप प्लस एफ ऑफ थीटा थीटा कैप, ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ आर आर कैप एफ ऑफ थीटा थीटा कैप इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, एफ वेक्टर एफ लिख सकता हूं। तो एफ ऑफ आर आर कैप ये कौन सा कंपोनेंट है, रेडियल कंपोनेंट, इज इट क्लियर, ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, रेडियल कंपोनेंट। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको कितना लिख सकता हूं, बेसिकली इसको लिख सकता हूं एफ ऑफ आर, एफ ऑफ आर। तो ये मेरा बन गया रेडियल कंपोनेंट, ये मेरा बन गया रेडियल कंपोनेंट। जो पूछा गया है आपसे रेडियल कंपोनेंट क्या है, वो ये वाला है, रेडियल कंपोनेंट क्या है, वो ये वाला है, आर यू अंडरस्टैंड। तो ये वाला बन गया रेडियल कंपोनेंट। अब आ जाओ एंगुलर कंपोनेंट, दूसरा रेडियल कंपोनेंट तो पूछा था आपको, रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये टेन वाला आएगा, थीटा वाला आएगा। उसके लिए हम करते हैं, यहाँ तक सारी चीज क्लियर है कि नहीं, राइट इन चैट बॉक्स, यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि नहीं, राइट इन चैट बॉक्स, यस सर, ओके, कंचन सेज यस सर, ओके। नाउ एनी अदर, किसी और किसी की कोई क्वेरी, तो मैं अब निकालूंगा रेडियल टेंजेंशियल वाला। टेंजेंशियल वाला कैसे निकालेंगे, ये मिटा देते हैं, और ये हमने निकाल लिया। अब ये तो निकाल लिया, अब चलेंगे हम एफ थीटा पर, है ना, शायद उससे पहले ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आर वाला आ गया, दिस इज एफ ऑफ आर, ये हमने निकाल लिया एफ ऑफ आर। कैसे निकाला, ये सारा पुट करके हमने ये सारी चीज देख ली, तो ये एफ ऑफ आर रेडियल कंपोनेंट निकाल लिया, रेडियल कंपोनेंट। अब निकालेंगे इस वाले फॉर्मूला से टेंजेंशियल, है ना, जी ऑफ थीटा। टेंजेंशियल कैसे निकालेंगे, टेंजेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा। जी ऑफ थीटा तो मेरे पास है, कितना है, मैंने निकाला है जी ऑफ थीटा, वो निकाला है मैंने जी ऑफ थीटा, ये वाला। तो जी ऑफ थीटा को पहले रख देता हूं मैं, क्या आएगा जी ऑफ थीटा, जी ऑफ थीटा आएगा डी ओवर डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू वेक्टर एफ करली आर ओवर करली थीटा। अब करना क्या है, जो आर था, आर कितना था हमारा, आर